And thanks very much for staying with Republic TV, nation's leading news brand. Good morning, I'm Sakal Bhatt. And amidst a mega show of strength by the NDA in Gujarat, BJP President Amit Shah is all set to file the nomination for the upcoming polls from Gandhinagar. Well, that's the story we're going to keep tracking for you. Gandhinagar seat. The seat has, remember, been the stronghold of BJP since 1989, and particularly party veteran Lal Krishna Advani, because remember, he's been the sitting MP since 1998, he in fact has had uninterrupted winning streak from Gandhinagar. And now joining Shah in a mega roadshow will be BJP allies Akali Dal and NJP, and that's the seat Amit Shah, the BJP president, will be contesting from. Uday Thackeray is also likely to be present there. Important NDA allies are also there. In fact, my colleague Himanshu as well as Priyanka, they continue to be live with us on Republic TV, and also Sucharita, but I'm going to go across to Himanshu first. Himanshu, over to you. बहुत ही सिग्निफिकेंट रैली है. इनफैक्ट उद्धव ठाकरे भी वहां पे दिख रहे हैं. एक शो ऑफ स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक एक्नॉलेजमेंट भी है कि अगर गुजरात के पॉलिटिकल टर्फ की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह का पॉलिटिकल स्टैचर काफी हद तक ऊपर है. Okay, right now the Chief Minister Vijay Rupani is addressing the gathering there. Let's listen in. ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. 10 વર્ષ યુપીએની સરકારે કોંગ્રેસે આ ગુજરાતને ખૂબ અન્યાય કર્યા છે અને હવે મોસાળેમાં પીરસનાર છે. નરેન્દ્રભાઈને અમિતભાઈએ ગુજરાતની ખૂબ ચિંતા કરીને ગુજરાતના પ્રાણ પ્રશ્નોમાં ગુજરાતને મદદ કરી છે. ફરી વખત મોદીજીની સરકાર બને, ભાજપની સરકાર બને, એનડીએની સરકાર બને અને આવનારા 5 વર્ષ ગુજરાતના વિકાસમાં આપ બંનેનું માર્ગદર્શન અને મદદ ગુજરાતને મળતી રહેશે. ગુજરાત ધન્યતા અનુભવે છે. અમિતભાઈના ગુજરાતમાંથી ઉમેદવારી આખા ગુજરાતની 26 બેઠક ઉપર એક નવો ઉત્સાહ, ઉમંગ, ચેતના પ્રગટી છે અને અમે તમને ખાતરી આપીએ છીએ કે ગુજરાતની 26 બેઠક દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી બને એટલા માટે ગુજરાતની જનતા આપશે. ગુજરાતની જનતાએ નક્કી કરી લીધું છે આવનારા દિવસોમાં આ દેશ એ દુનિયામાં મહાસત્તા બને. ગરીબ, પીડિત, શોષિત સૌનું કલ્યાણ થાય એ માટે ગુજરાતની જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોને વિજયી બનાવશે એવી અમને શ્રદ્ધા છે. આજે આપ ફોર્મ ભરો છો, સમગ્ર પાર્ટી આપની સાથે છે, જનતા પણ આપની સાથે છે અને આવનારા દિવસોનો આ વિજય વિશ્વાસ આગળ વધશે તેવી શ્રદ્ધા સાથે આપને ખૂબ શુભકામનાઓ અને આપ ગુજરાતનું કલ્યાણ કરશો તેવી આશા સાથે. ધન્યવાદ. हमारे बीच एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व, जिनके लिए पंजाब में और देश में अपार प्रेम है, ऐसे सम्मान्य श्री प्रकाश सिंह बादल जी को मैं अनुरोध करता हूं कि हमें मार्गदर्शन करें. आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी. देश के महान नेता, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो कि इस गांधी नगर पार्लियामेंट सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, श्री अमित शाह जी, देश के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, उद्धव जी, इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहबान और दूर दराज से आए मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है.
आज अमित शाह जी अपने नॉमिनेशन पेपर इस पार्लियामेंट्री हलके से भर रहे हैं। गुजरात वालों, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट भी आपकी स्टेट के और प्रधानमंत्री भी आपकी स्टेट से। आपने बहुत कोई साधना की होगी जिससे ये दोनों पदवियां आपकी स्टेट को मिली हैं। भाई साहब, अमित शाह जी इंसान नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। उनकी लाइफ, उनकी सारी जिंदगी हमारे लिए एक लाइट हाउस है। मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपेनर, ऑर्गेनाइजर वो भाई अमित शाह जी हैं, जो पिछली दफा पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए जिससे मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें चीफ कंपेनर और ऑर्गेनाइजर अमित शाह जी थे। मोदी जी के बाद अगर किसी को क्रेडिट जाता है हिंदुस्तान में सरकार बनाने का तो अमित शाह जी को ही जाता है। अमित शाह जी एक ग्रास रूट लीडर हैं, जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं। लंबा समय उन्होंने असेंबली में सेवा की और जब मोदी साहब की गवर्नमेंट थी यहां तो उसमें भी बहुत नौजवान मंत्री थे। भाइयों, आज जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं उसका मुद्दा क्या है, उसका निचोड़ क्या है कि देश का प्रधानमंत्री किसने बनना है। जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो चीफ मिनिस्टर की तरफ निगाह होती है और मैं कह सकता हूं कि जो मोदी जी ने पिछले 5 साल में देश की सेवा की है, बढ़िया गवर्नेंस की है, देश का नाम बड़ी शक्तियों में से एक कर दिया है और सबसे ज्यादा जो देश की सिक्योरिटी है उसमें उन्होंने फैसला कुन जंग चली है। जो स्ट्राइक्स हुई, एरियल स्ट्राइक हुई या दूसरी स्ट्राइक हुई, उसमें उन्होंने देश का नाम बड़ा ऊंचा किया है और मिलिटेंसी जो थी उसको क्रश करने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि देश के फौजी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये डिसाइसिव नेचर मोदी साहब की है। मैं श्रोमणी अकाली दल की तरफ से इस पवित्र दिन में जब अमित शाह जी नॉमिनेशन भर रहे हैं उसमें हाजिर हुआ हूं और जाती तौर पर मेरी उनके प्रति, मोदी साहब के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ी श्रद्धा है और श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का पुराना और पक्का साथी है। इसलिए हम परमात्मा से यही अरदास करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि मोदी साहब फिर दोबारा
बहुत बड़ी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी भी देश की हुकूमत में इनका बड़ा हिस्सा हो। जो कुछ मोदी सरकार ने किया है वो टाइम नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं, पर एक बहुत बड़ी देश में तब्दीली लाए हैं, इनकलाब लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से देश की तरफ से, पंजाब की तरफ से उनको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना भेजता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूं हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हमें संबोधन करेंगे। आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष और गांधीनगर के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अमित भाई, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी, आदरणीय उद्धव जी, आदरणीय रामविलास जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, सभी नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, आने वाला चुनाव देश के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने कार्य करके दिखाया है। हमारा देश प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर हिंदुस्तान को बनाने का संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने किया है। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी जनता के समर्थन से हम आगे जा रहे हैं। एक तरफ सरकार प्रगति और विकास की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अमित भाई के नेतृत्व में हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय अमित भाई को जाता है। इस चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए की जीत होने वाली है और मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने वाली है। हमारे देश के लिए और देश की जनता के लिए पूरी तरह से सभी को इस बात का विश्वास है कि हमारी सरकार देश के भविष्य को बनाने वाली है और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा, इसके किसी के आधार पर हमारे सरकार ने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को साथ में रखकर हमने देश में प्रगति और विकास की ओर हम आगे निकले हैं। अमित भाई विशेष रूप से हमारे पार्टी के ऐसे अध्यक्ष हैं कि उन्होंने पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ इंडिया से लेकर बंगाल में तक हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को ताकत और शक्ति के साथ खड़ा करने का श्रेय अमित भाई के नेतृत्व को जाता है। और आज वो गांधीनगर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात की जनता उनको अच्छी तरह से जानती है, पर देश की जनता के मन में भी उनके प्रति एक विश्वास निर्माण हुआ है और मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व के साथ उनके सपोर्ट में अनेक नेताओं की ताकत के साथ इस देश के भविष्य को बदलने के लिए अनेक नेताओं के साथ मोदी जी को मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसलिए गुजरात की इस भूमि से, यहाँ के भूमिपुत्र के रूप में अमित भाई का जो योगदान है, उसके आधार पर मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी जीत बहुत बहुत निश्चित है। मैं हृदय से
उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और गुजरात की जनता से और गांधीनगर की जनता से अपील करता हूं कि रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से उनको विजयी बनाइए। यही आप सबको अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शिवसेना के अध्यक्ष और हमारे एनडीए के राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमान श्री उद्धव ठाकरे जी को मैं अनुरोध करता हूं कि हमें मार्गदर्शन करें। माननीय अमित भाई, माननीय राजनाथ जी, बादल साहब बैठे हैं, नितिन जी हैं, मंच पे विराजित सभी मान्यवर नेतागण और मेरे भाई और बहनों, अमित भाई, बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। कुछ लोगों को आनंद हुआ है और लेकिन कुछ लोग क्या करें, आदत है, आदत से मजबूर है, पेट में दर्द होने लगा। जिनके पेट में दर्द होने लगा है उनका इलाज मेरे पास है, अमित भाई के पास है और सबसे ज्यादा आपके पास है। मी शिवप्रभूंच्या महाराष्ट्रामधून माननीय बाळासाहेबांचा आशीर्वाद घेऊन अमित भाईंना शुभेच्छा द्यायला आलेलो आहे। अरे या मराठी भी अच्छी समझ लेते लोग। यही भाईचारा होना चाहिए। और जो मैं बात कह रहा था कि कुछ लोग खुशी मना रहे थे कि एक विचारधारा वाली पार्टी आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है, लेकिन वो जानते नहीं कि जो कुछ चल रहा था, अमित भाई मेरे घर आए, बातचीत हुई, मनमुटाव जरूर था, मतभिन्नता जरूर थी, लेकिन जब हम साथ में बैठे तो कोई अब मनमुटाव नहीं रहा, ना कोई मतभिन्नता रही। जितने सारे विवाद थे हमने उनको खत्म कर दिया है। और वो इसलिए क्योंकि शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा एक है। हिंदुत्व यानी राष्ट्रीयत्व हमारी विचारधारा है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदुत्व हमारी सांस है, अगर सांस रुक जाए तो हम कैसे जिएंगे। और इसलिए हम फिर से एक बार एक साथ आए हैं। जो पार्टियां, जैसे आपने अभी देखा होगा कि हम सारे साथ खड़े रहकर एक बड़ी माला हमें पहनाई गई। ये तो चुनाव का माहौल रहता है, गर्म करने का एक तरीका रहता है। विपक्ष ने भी कितने 56, अब तक 56, एक पिक्चर थी वो याद आ गई मुझे, अब तक 56, वो सारे इकट्ठा आए, हाथ में हाथ मिलाए, हाथ मिलाओ। लेकिन वो एक जो कहावत है ना, दिल मिले ना मिले, हाथ तो मिलना चाहिए। हमारा दिल मिल गया है। और हमने यही सोचा कि पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ हो गया, लेकिन उसके पहले 25 साल 30 साल जो हो रहा था, हम दोनों, हमारे पास क्या था। पूरे अगर देश की राजनीति का हम विचार करेंगे उस वक्त का, तो हम दोनों पार्टियां, हम दोनों के अलावा एक दूसरे के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। एक बादल साहब थे, जरूर थे, लेकिन मान लो कि दोनों हम राजनीति में अछूत थे, सामने कुछ नहीं था, लेकिन एक भगवा हाथ में लेकर हम चल पड़े थे। पता नहीं 25 साल कैसे गुजर गए। जो एक अपना सपना था वो सच्चाई में बदल गया। दिल्ली के तख्त पर अपना भगवा लहराया गया। और आज हमारी सोच एक है, विचार एक है, नेता एक है। मैं विपक्ष को पूछना चाहता हूं कि क्या आप में एक ऐसी कोई बात है कि जो आप हमें बता सकते हैं, देश की जनता को बता सकते हैं। आपका नेता कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हमें सत्ता चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन कुर्सी के पागल नहीं है हम, कुर्सी के दीवाने नहीं है हम। तो यही मैं आह्वान विपक्ष को देता हूं। मेरी बात सुन लो। जैसे आप मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, मैं विपक्ष को आह्वान देता हूं, चलो जैसे हम एक साथ आए हुए हैं, आपकी एक रैली करो और कार्यकर्ताओं को बोलो कि एक नाम लेकर नारे लगाओ। चलो, मेरा आह्वान है।
ना कोई सोच है, ना कोई नेता है। कितने लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? ये चाहता है कि हम इकट्ठा आए, क्योंकि अगर हमारा बहुमत आता है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो चाहता है नहीं मैं बनूंगा। अरे पहले ही टांग खींचना शुरू कर दिया आपने, तो आगे कैसे? जब आपस में टांग खींचना शुरू होता है तो वही टांगों से, वही कदमों से आगे कैसे बढ़ सकते आप? और इसलिए मैं कहता हूं अमित भाई, मैं यहां आया हूं, मैं आपको पता है और आप सभी लोगों को पता है, जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाया है, हमारे ऊपर जो संस्कार है, जो करना है दिल खोल कर करो, दिल खोल कर करो। हमने जो मुद्दे उठाए थे जनता के थे, संघर्ष में नहीं कहता, मत भिन्नता थी, लेकिन उसको तो मैंने पहले ही कह दिया कि हमने मिटा दिया है, लेकिन हमने पीछे से कभी छुरा नहीं भोंका, ना ही भोंके। ये हमारे कोई संस्कार नहीं है, हमारे नहीं है। अमित भाई, मैं दिल से यहां आया हूं आपको शुभकामनाएं देने के लिए। और विजय जी, आपने सही कहा, अमित भाई को हम तो चले जाएंगे हमारे राज्य में, लेकिन अमित भाई तो पूरा देश घूमेंगे। यहां की जीत, उसकी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है ना? क्या आप समर्थ है लेने के लिए? समर्थ है? जरा हाथ ऊपर करके बताओ कि हाँ हम समर्थ है। तो बस, हमेशा चुनाव आता है तो माहौल गर्म होता है, लेकिन अब मुझे चिंता इस बात की है, माहौल गर्म करने के लिए सामने है कौन? कोई नहीं है। माहौल तो हमारा ही है, भगवा भगवा और भगवा, दूसरा कुछ है नहीं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। अमित भाई, आपको हमने जो शपथ ली है कि दोनों साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, तो आप आगे चलो, हम साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। मैं अनुरोध करता हूं एनडीए के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को कि वो हमें संबोधन करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के महान नेता और यहाँ गांधीनगर से उम्मीदवार, हम सबके साथी नेता आदरणीय अमित शाह जी, भारत सरकार के होम मिनिस्टर आदरणीय राजनाथ सिंह जी, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रूपानी जी, वरिष्ठ नेता अकाली दल के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी, हमारे साथी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, यहाँ मंच पर बैठे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे साथी नेतागण, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है और ख़ास करके गुजरात के जो हमारे लोग हैं, मतदाता हैं, कि आज आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने पिछले 5 साल में, पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी पहले से थी, मजबूत थी, दो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी यहाँ हैं। पिछले 5 साल में जो है गांव-गांव में, घर-घर में, बूथ-बूथ पर इन्होंने, अमित शाह जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। और एक तरफ में 2 जोड़ी, एक तरफ में दिन रात काम करने वाले, कभी सोते नहीं हैं, कब सोते हैं पता नहीं चलता है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे तरफ में हमारे आदरणीय अमित शाह जी, जिस तरीके से पूरे देश में एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को जो है पहुंचाने का काम किया,
और जब ये कहते थे, शुरू में इन्होंने कहा था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, तो लोगों को थोड़ी बहुत जो है उसमें संदेह लगता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कहीं कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, कहीं महागठबंधन जो है लठबंधन में बदल गया है, सब जगह आपस में लोग लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। कल आए थे अमित शाह जी, वहाँ जो है बिहार में क्या कहते हैं, बिहार में 2 सभा इनकी थी, फर्स्ट फेज का जो यहाँ होने वाला है, आज यहाँ हैं। और हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि एनडीए को जितना सीट और भाजपा को जितना सीट 2014 के लोकसभा में मिला था, उससे ज्यादा सीट जो है 2019 में मिलेगा। हमने 3 साल पहले, उद्धव भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सर्वदलीय जब बैठक हुई थी तो मैंने 3 साल पहले कहा था, जब प्रेस वालों ने हमसे पूछा था कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, तो हमने कहा था विरोधियों को कह दीजिए कि 2019 में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद का, 2024 की तैयारी करें, उस समय में देखा जाएगा। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पावर टू द पुअर, गरीब की सरकार है। हमारे जो दलित भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर देश के एकमात्र नेता हैं, एकमात्र नेता हैं दलितों के। और हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू में, वहां जो है विशाल स्मारक बन गया। जहां 26 अलीपुर रोड में वो पढ़ते थे, किताब जहां से उनकी मृत्यु हुई थी, कि संविधान लिखा था, उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नेम फेम हुआ। जो हमारा बगल में मुंबई है, मुंबई में चैत्य भूमि है, वहां 12 एकड़ जमीन इंदू मिल का जमीन था, टेक्सटाइल का, खरबों रुपया का खरीद करके अंतर्राष्ट्रीय जो है वहां स्मारक बन रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में जहां पढ़े थे, वहां प्रधानमंत्री गए और वहां हम लोग भी गए थे, और वहां जाकर के उस मकान को खरीद करके अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया गया। बिरसा मुंडा